So we were talking about why do we need a constitution as such. Now I've explained to you coordination, reassurance, specification of decision-making process, limitation on powers of the government, aspirations and goals of the society. Now we will move a little forward as to why do we need a constitution. Enabling provisions of the Constitution. Constitutions are not only rules and regulations controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective good of the society. So it's not just कि आपको power दे दी गई है तो आप बस that's constitution. It also enables कि ये power का आप use कैसे करेंगे for collective good of the society. आप इस power को use करेंगे, आप इसका constitution को implement करेंगे ढंग से, क्योंकि legislature और laws भी बनाएगी with टाइम कि ये टाइम के साथ इम्पोर्टेंट है और उसके बाद आप वो लोग इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. Constitution of South Africa assigns many responsibilities to the government. It wants the government to take measures to promote conservation of nature, make efforts to protect. अब conservation of nature में पटाखों की प्रॉब्लम भी आती है, एयर क्वालिटी भी आती है, यमुना भी आती है, गंगा भी आती है. So नमामि गंगे is a nice project या फिर यमुना पे घाट बनाना is a nice project, but the problem is PR. आप उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, देन फिर फॉल्स न्यूज आ जाती है कि सिर्फ ये वाले घाट साफ हुए हैं, बाकी घाट साफ नहीं हुए, यमुना ढंग से साफ नहीं हुई. अपने आप थोड़े ना साफ हो जाएगी. आप एक दूसरे को इधर उधर डिवाइड एंड रूल करने के चक्कर में यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का इमेज गलत बन रहा है, बिकॉज इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी एंड सोशल मीडिया और ये सब ओपन है और लिबरल डेमोक्रेसी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है फॉर्म्स में. So when people are voting and उनको आप confuse कर रहे हो to vote for who, you're not giving the right information, आप PR गलत कर रहे हो and उसके बाद you are just fighting internally and externally both. So a war should not be fought on all fronts. या तो आप foreign policy पे ही ध्यान दो, इंडिया में शांति रहेगी, या फिर आप अंदर की पॉलिटिक्स पे ध्यान दे लो, आप थोड़े दिन के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान मत दो, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. देयर आर वॉर्स दैट आर हैपनिंग, प्रॉक्सी वॉर्स जिसको हम बोलते हैं, टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं. सो इफ यू फाइट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स तो वो दैट विल आल्सो कम टू आवर हाउसेस, बिकॉज with the bomb blasts or the suicides or the killings or the murders or the crimes that are rising in the society and the rapes and crimes against communities, and because men only know how to satisfy their ego by hurting the other person. So all of this is too much to be going on. Make efforts to protect persons or groups subjected to unfair discrimination, which is untouchability, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, healthcare, etc. जैसे मैंने last lectures में भी समझाया कि education and healthcare must होना चाहिए. In the case of Indonesia also, the government is enjoined to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensures that the poor and destitute children will be looked after by the government. So it is not a socialist exactly or a communist exactly thing to do. It can also be a capitalist thing to do कि अगर आप education health sponsor कर दें, education और health insurance sponsor कर दें, या फिर सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस स्पॉन्सर कर दें, एंड द रेस्ट कैन बी टेकन केयर बाय द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज इनफ मनी टू इन्वेस्ट एवरीवेयर, बिकॉज वो पैसे कमा लेंगे. उनको अगर मैं देहरादून जाके गुच्चू पानी जा रही हूँ, वहां पे वो मुझे चप्पल भी प्रोवाइड करेंगे ना 10 रुपए की रेंट पे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो तब भी कमा लेंगे. या फिर अगर मैं स्पिरिचुअल होके हरिद्वार जा रही हूँ, ऋषिकेश जा रही हूँ, वो वहां पे महादेव की मूर्तियां बेच के भी पैसे कमा लेंगे. वो दान पुण्य ये सब करके भी पैसे कमा लेंगे. कैपिटलिज्म को पैसा कमाना आता है. तो एक अगर आपने मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट स्टेट बोला है तो यू कैन एटलीस्ट अवेकन पीपल इनफ to understand things that are complex and going on, and you can help them work on their education and health, which is RTI and other things that are there in the fundamental rights also. Life, liberty, property is now a legal right. So once that's secure, roti, kapda, makan and ghar is safe, you can work on other things and you can make other things capitalist, like your trains, like your buses, like your monuments and other things that are there. So if education and health is being looked upon, and UPSC people, I think UPSC people should also start fighting elections, because they understand the game better and they will be able to come up with better decisions, because
विद द मेजोरिटी गवर्नमेंट इन पावर ऐसा होता है कि डिस्कशंस अच्छे नहीं हो रहे होते हैं, एंड विदाउट डिस्कशन जब आप एक के बाद एक बिल पास करते जाते हो, नाउ विंटर सेशन इज कमिंग, सो उसमें क्या रहता है कि जब क्वालिटी डिस्कशंस हुए नहीं तो फिर coming to a conclusion becomes easier, one takes less time, two but those decisions are not quality decisions. सोच समझ के लिए हुए फैसले नहीं होते, जैसे बनी को नैना ने बोला ना, थोड़ा वक्त दो सब ठीक हो जाएगा. सो व्हेन यू गिव टाइम टू सम थिंग्स तो दोज गेट बेटर. सो कोलिजन गवर्नमेंट्स में यही रहता है कि बिकॉज देयर इज एन ऑपोजिशन टू टेक केयर ऑफ इट, so things get better. Now you have to understand some things. This is, for example, your assembly. I'm not talking about India. I'm just talking an assembly to make a bill, a law. ठीक है. This is the decision maker or the speaker for the session. This is your left side. This is your right side. This is your center. अब अगर मैं सेंटर की बात करूं तो बीच में लेट्स जस्ट से पावर. ठीक है. लेफ्ट में पीपल who want to be in power. Right में people already in so much power. Correct? तो अगर मैं लेफ्ट में हूं तो मेरा राइट में जाने का मन करेगा, और मैं राइट में हूं तो मेरा और राइट में जाने का मन करेगा. मैं सेंटर में हूं तो भी मेरा राइट में जाने का मन करेगा, बिकॉज ऑलरेडी सो मच इन पावर, एंड पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. So if I'm saying we need limitations on powers of the government, अब ये limitations क्या है? आपके rights. We need aspirations. ये aspirations क्या है? आपके duties. We have specified with legislature, executive, judiciary the distribution of power, and we have a written living document and an evolved constitution. So I am saying Indian Constitution, your chapter name, at work. तो अब ये काम कैसे कर रहा है? सो लेट्स जस्ट से जो लेफ्ट में है वो पावर में आना चाहते हैं, जो राइट में है वो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते, और जो सेंटर में है वो एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पावर में है. Now this corrupts you. Sorry, this corrupts you. This corrupts you completely. And this happens when you have a majority in your government. This happens when you have a coalition. And this happens when you have a minority in the government. Now you have to understand, left का मतलब is not Marxist. लेफ्ट का मतलब जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं. अब इसमें LGBTQI भी आएगा, इसमें औरतें भी आएंगी, इसमें अनटचेबल्स भी आएगा, इसमें दलित भी आएगा, इसमें SC, ST, OBC सब आएगा क्योंकि वो परेशान है. ठीक है. जनरल कैटेगरी को एक बैलेंस चाहिए क्योंकि वो भी परेशान है विद द राइट. राइट में वो लोग हैं जो जिनको थोड़े पावर के नशे हो चुके हैं. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
जैसे मैंने बोला था, अकॉर्डिंग टू मी इज ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैटर्स. These people don't want to lose their power and come back here. These people want to go here, but they want to travel ऐसे. These people want to bring a balance, but they also want to go here. And this person has to decide the conclusion. और जब ये लोग सब इधर जाना चाहते हैं ना, that is called fascism. क्योंकि कुछ भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी वही कर रही है, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, बीजेपी भी वही कर रही है. आप कभी सिख हो जाते हो, कभी हिंदू हो जाते हो, कभी क्रिश्चियन हो जाते हो, आप कभी कम्युनिस्ट हो जाते हो, कभी सोशलिस्ट हो जाते हो. जो भी चलता है चलाओ, जो करना है कराओ, ऐसे वाला सिस्टम हो जाता है. जैसे होता है ना, औरत को क्या चाहिए? औरत को सिर्फ इज्जत चाहिए, आपको पावर चाहिए ओवर दैट वुमन. सो दैट्स हाउ फासिज्म कम्स. ठीक है. अब राइट का मतलब ये भी नहीं है कि सारे ही कैपिटलिस्ट उधर हैं. कैपिटलिस्ट इधर भी हैं, जो पावर का बैलेंस लेके आना चाहते हैं, जो एजुकेशन हेल्थ स्पॉन्सर करके दोनों साइड को शांत करना चाहते हैं. और ये लोग कंफ्यूज्ड हैं. ये लोग ये कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज अ मैकियावेलियन, बट दे विल नेवर अग्री दैट दे आर अ मैकियावेलियन. इनको पावर चाहिए, इनको कैसे भी चाहिए, वॉर करके चाहिए, झूठ बोल के चाहिए, करप्शन करके चाहिए. इन्हें बस पावर में रहना है और पावर बढ़ाते जाना है. मैकियावेली ने यही बोला था, एक रूलर को रिलीजन फॉलो नहीं करना है, रिलीजन का इस्तेमाल करना है. मैकियावेली ने बोला a ruler should be something like a fox and a lion. दो फॉक्स और लायन होने चाहिए. एक फॉक्स एक लायन, एक चालाक लोमड़ी और एक शेर. चालाक लोमड़ी जो काम कराए, इवन चाणक्य सेड थिंग्स लाइक दिस, कौटिल्य. और शेर जो वो इम्प्लीमेंट कर दे, तभी पावर मेंटेन होगी, तभी पीपल विल अंडरस्टैंड, सिविक सेंस तभी आएगी. क्योंकि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला. तो अगर आपको रिलीजन की भाषा समझ में आती है, या कास्ट की भाषा समझ में आती है, या आप वोट कास्ट और रिलीजन के नाम पे डालते हो, तो जो पावर में लोग हैं वो आपका इस्तेमाल ही करेंगे. अगर मैं आपको पुलिस वाला बोल रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी साइड कर लो, यहाँ से झांकी जाने वाली है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. तुम पता कैसे समझोगे? अगर मैं यहाँ पे हनुमान जी, कोई ह्यूमन इंसान को हनुमान जी का वस्त्र पहना दूं और वो तुमसे बोले ए, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर देन. भगवान के नाम पे आप चीजों को बेटर समझते हो. भय बिना प्रीत नहीं होती. मैंने पहले भी कहा था, आप लोग भगवान से प्यार नहीं करते हो, आप लोग भगवान से डरते हो. एंड दैट इज वाई अरिस्टोक्रेसी हैज टू यूज रिलीजन टू डिवाइड एंड रूल. जो भगवान में मानते हैं और जो भगवान में नहीं मानते. कम्युनिस्ट नहीं मानते, कैपिटलिस्ट बोलते हैं जो करना है कर लो, जो चलता है चलाओ. एंड दैट इज वाई हॉच पॉच हो जाती है. दैट इज वाई यू गाइज आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि किसे वोट देना है. दैट्स व्हाई यू कॉल पीपल एंड आस्क किसे वोट देना है. एवरीवन कॉल्स माय डैड एंड आस्क कि आप नहीं लड़ रहे इलेक्शन, वोट किसको देना है. अरे जब लड़ रहे थे तो कौन सा आपने वोट दे दिए थे. गो टू वेबसाइट्स, सर्च इन्फॉर्मेशन, लिस्ट बना लो लेफ्ट राइट विच इज बेटर. आप लोग ये नहीं देखते हो कौन बेस्ट है, आप देखते हो कौन लीस्ट ऑफ द वर्स्ट है, कि कम से कम इसने ये तो नहीं किया था. So that's why you need a written constitution, and that's how power operates. Left, right और center का मतलब ये होता है. Left, right are not ideologies, they are directions. यहाँ से यहाँ, क्योंकि इनकी पावर जब खत्म होती है, इनको यहाँ से दोबारा शुरू करना पड़ता है. एंशियंट ग्रीस में डेमोक्रेसी शुरू हुई, उसके बाद मिडीवल टाइम्स, फिर मॉडर्न टाइम्स. इंडिया में एंशियंट टाइम्स में ट्राइबल ग्रुप्स थे, फिर मिडीवल में वॉर्स हुए, फिर अब मॉडर्न टाइम्स में डेमोक्रेसी आ गई. तो वो अगर ऐसा ग्राफ है ना, तो ऐसा भी ग्राफ है. जैसे कमल होता है, दिस इज अ मिरर या वाटर बॉडी. जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो इट्स द सेम थिंग. बोलते हैं ना, रात को शीशा मत देखो, शीशा ढक दो. बिकॉज इन द कॉस्मोस and it's all science, there is something opposite happening on the other side of things. And then when that something comes here, Big Bang theory and black holes in time, जब आप रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ोगे, तो टाइम, आप जब टाइम की स्पीड से ज्यादा चल रहे होते हो, टाइम स्लो हो जाता है. जब आप स्लो काम कर रहे होते हो, टाइम फास्ट हो जाता है. कभी नोटिस किया हो, विंटर्स में दिन छोटे होते हैं,
समर्स में लंबे होते हैं, कभी सोचा हो ज्योग्राफी या कैलकुलेट किया हो वाई। ब्लैक होल भी ऐसा ही होता है, डिप्रेशन का ब्लैक होल भी ऐसा ही होता है, एक बार वो अंदर आपको खींच लेना, उसमें ग्रेविटी इतनी है कि वो छोड़ता नहीं है, बट हाँ एक बार आपको बाउंस आउट कर दे, there's no going back to that hell hole. So that's how power operates, that's how state operates, and that's why we need a written constitution. And we will end this lecture here. Thank you.